Okay, good morning, students. We start today's class of operating system with the topic of inter-process communication, IPC. Okay. In last class, we just checked the basic introduction of process state, ready, running, and waiting, and PC process control flow. Now is inter-process communication. Inter-process communication means we communicate or between two or more processes. The process of communication between or data shared between two or more processes. Process one and process two. Now, exactly inter-process communication is a mechanism where the operating system allows various processes to communicate. Yeah, simply communicate means data shared between more than one or more than one process. Okay? Two or more process. Now we categorize the process into two categories. First one is independent process and second one cooperative process. Independent process means a process which cannot share its data with any others. Means इसका जो data है वो किसी के साथ share नहीं कर रहा, just independent. ठीक है? And second one cooperative. Cooperative means this process shared its data with another process. ठीक है? Means this process communicate with another process called cooperating process. In independent process there is no need of communication. Okay, and but in cooperative process we need a communication called inter-process communication, IPC. Clear? Here definition: any process that does not share data, ठीक है, means independent की बात करें, that does not share data with any other process called independent, and cooperative we share the data with other process known as cooperative प्रोसेस. ठीक है, तो इंडिपेंडेंट प्रोसेस के लिए आईपीसी रिक्वायर्ड नहीं है. ठीक है, तो इन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन वी जस्ट कंसीडर दिस टाइप ऑफ प्रोसेस. कोऑपरेटिव मींस व्हिच शेयर इट्स डेटा विद अनदर प्रोसेस. ठीक है, तो शेयर कर रहा है, बट आई थिंक शेयर करने की रिक्वायर्ड क्यों है, क्यों हम डेटा शेयर कर रहे हैं. ठीक है, तो समथिंग रीजन फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग. If a process want to share its information means if a process one calculate value of a and this value of a is used by this process too. ठीक है, तो for resource usability or source code reusability we directly use this a value here. So process to require the data a. This is the information sharing. Then for speed up against reusability, modulity, we divide the functionality of process 1 and process 2 and okay, obviously convenience process है ये. ठीक है, तो cooperative process need the inter process communication. ठीक है, तो we consider only cooperative process. ठीक है, okay, last class तक यहाँ हो गया था. Now important inter process communication use basically two types of method. Means जो data share कर रहा है वो किस तरह से share कर सकता है. दो तरीके हैं. First one called shared memory and second one message passing. Shared memory and message passing. Shared memory में okay, shared memory की हम बात करें. shared memory both the process will use some memory space in RAM known as shared memory. Means if process A want to communicate with process B, process A send the data into shared memory and process B read from this shared memory. And vice versa, if process B send data to A, then it write its data into shared memory and process A read from shared memory. Okay, यहाँ पर एक चीज है, process A और B दोनों एक ही memory यूज कर रहे हैं, location memory location, जहाँ पर अगर दोनों को communicate करना है तो वो data यहाँ put कर रहा है और यहाँ से read कर रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पर process की ही responsibility है कि same location पर दोनों ही data write ना करें. सपोज प्रोसेस ए को भी कुछ डेटा भेजना ए, उसने यहाँ राइट कर दिया, और प्रोसेस बी को कुछ डेटा भेजना बी, वो भी यहीं राइट कर दिया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, तो दिस ओवरऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोसेस कि सेम लोकेशन पे वो डेटा राइट ना करे. ठीक है, दिस इज द शेयर्ड मेमोरी कंसेप्ट. अनदर वन मैसेज पासिंग. मैसेज पासिंग मीन्स अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम आई थी आपकी शेयर्ड मेमोरी के अंदर, जो पूरे प्रोसेस को हैंडल करना था. ठीक है, बट मैसेज पासिंग जो अब आपका कर्नल है, ठीक है, उसके थ्रू हो रहा है. मींस प्रोसेस ए एंड बी के बीच अगर कोई कम्युनिकेशन करना है, देन प्रोसेस ए सेंड अ मैसेज लाइक यूर जीमेल. ठीक है, जैसे आप मैसेज सेंड करते हो या चैट बॉक्स में आप मैसेज सेंड करते हो, सिमिलर प्रोसेस है. प्रोसेस ए सेंड अ मैसेज टू द मैसेज क्यू हैंडल बाय द कर्नल. ठीक है, क्यू बना हुआ है, उसके अंदर मैसेज आ रहे हैं. M1 M0 M1 M2 इज द नंबर ऑफ मैसेज. ठीक है, तो मैसेज आएगा और क्यू की प्रॉपर्टी बताइए आपको.
ठीक है। तो उसी फॉर्म में आपका एक एरे बना हुआ, उसके अंदर मैसेज ऐड हो रहे हैं और यहीं से रीड हो रहे हैं। तो प्रोसेस ए को अगर मैसेज सेंड करना है तो मैसेज सेंड करेगा इस क्यू में, और बी को यहाँ से रीड करना है तो वो फर्स्ट कम फर्स्ट आउट के प्रोसेस से, FIFO के प्रोसेस क्यू की प्रॉपर्टी है। जो सबसे पहले मैसेज आया M0 उसको रीड करेगा, फिर M1 रीड करेगा। इस तरह से दोनों मैसेज पासिंग के थ्रू वर्क करेंगे, जो कि कौन हैंडल कर रहा है, आपका कर्नल। ठीक है। तो ये जो मैं बताया बेसिक देख लो। शेयर्ड मेमोरी रीजन, जो उसको हम कहते हैं मेमोरी एरिया, मेमोरी स्पेस, रीजन ऑफ मेमोरी दैट इज शेयर्ड बाय cooperating process, obviously cooperating करेगा। ठीक है। and process can be then exchange information by reading and writing the data to the shared region। shared region shared memory की बात करें वहाँ पे। and similar message passing में क्या हो रहा है, वो मैसेज सेंड कर रहा है। ठीक है। ओके, इम्पोर्टेंट थिंग नाउ। तो अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रोसेस जो था आपका शेयर्ड मेमोरी। ठीक है। तो आई थिंक बेसिक डिफरेंस आपको दोनों क्लियर हो गया, व्हाट इज शेयर्ड मेमोरी एंड व्हाट इज मैसेज पासिंग। ठीक है। नाउ डिटेल में हम आते हैं इसके ऊपर, शेयर्ड मेमोरी कंसेप्ट। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है शेयर्ड मेमोरी के अंदर, सिंक्रोनाइजेशन। टर्म यूज आपने सुना होगा, सिंक्रोनाइजेशन। एनीवन, व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन? सिंपल मीनिंग, नॉट टेक्निकल, सिंपल मीनिंग ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन, यस। मोहित साथ पोजक, साथ यस यस बोलो। सर दो मतलब कोई भी और काम जो ज्यादा है चीजें साथ साथ। साथ सर करना। दो चीज एक साथ जब काम करें, मतलब बिल्कुल, एक साथ जो काम करें दो चीज। ठीक है, गुड। उसके आगे थोड़ा सा और क्लियर। सेजल कुछ बोल रहे थे? और एक सेम रेट पे, सर और दो एक या सेम दो रेट से ज्यादा चीजें एक साथ काम करें एक ही टाइम पे, और इंफॉर्मेशन शेयर करें। इन्फॉर्मेशन शेयर करें, ओके। ठीक है, आपने थोड़ा सा सही बताया कि सिंक्रोनाइजेशन कब होना चाहिए, जब कोई भी दो चीज साथ साथ काम कर रही हो ना, वो तो ठीक है, और इन्फॉर्मेशन शेयर करें, उस टाइम क्या होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन। सिंपल अगर मैं नॉन टेक्निकल बात करूं तो एक बैंड है, म्यूजिकल बैंड। ठीक है। उस म्यूजिकल बैंड में कुछ इंस्ट्रूमेंट है, लाइक गिटार, ये गिटार प्ले कर रहा है, ड्रम, ये आपकी जो बांसुरी, और भी कुछ ढोलक है ना, व्हाटएवर। तो ये चारों लोग म्यूजिकल बैंड के हैं, और यहाँ पर जो कहावत है हिंदी की, अपनी अपनी डपली अपना प्राग। ये ढोल ड्रम बजा रहा है कुछ अलग सॉन्ग पे, ये गाना गा रहा है कोई अलग ही सॉन्ग है, बांसुरी अलग ही बजा रहा है, ढोलक अलग ही बजा रहा है, और भी कोई इंस्ट्रूमेंट जो पियानो वगैरह है, सारे डिफरेंट डिफरेंट चीज चल रही है। ठीक है। प्रांशु ने लिखा है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मींस शेयरिंग सिस्टम रिसोर्स बाय द प्रोसेस। ओके, क्लियर कर देते हैं इसको। तो ये बेसिक थिंग है कि ये सारे अपने अपने डबली अपना अपना राग कर रहे हैं। तो क्या ये जो गाना सुन रहा होगा सामने जो पब्लिक होगी उसको अच्छा लगेगा? नहीं, बिकॉज ये सारे काम तो एक साथ ही कर रहे हैं, लेकिन नॉट इन सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन मैनर नहीं है, मींस सबका अपना अपना चल रहा है। और सिंक्रोनाइजेशन मीनिंग क्या होता है, अगर सारे एक ही सॉन्ग को प्ले करें, जो म्यूजिक है वो उसी से रिलेटेड हो, ड्रम जो बज रहा है उसी से लिए, पियानो या जो आपका इंस्ट्रूमेंट है ना, सारे इंस्ट्रूमेंट सेम रिदम पे वर्क कर रहे हो, उसको हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। एक ही लो में, है ना, एक ही लय सबकी हो, उसी के साथ चले, सिंक्रोनाइजेशन। तो यहाँ क्या हो रहा है शेयर्ड मेमोरी में, देखो कि ये प्रोसेस P1 और प्रोसेस P2 ने क्या किया, एक मेमोरी लोकेशन को शेयर किया, इसके बीच में कुछ डेटा आएगा वो। अब हुआ क्या, सेम टाइम में प्रोसेस P1 ने भी एक डेटा अपडेट कर दिया और P2 ने भी एक डेटा अपडेट कर दिया उसी मेमोरी लोकेशन पे। क्या होगा, डेटा में भी रिप्लेस हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम टाइम में, ये ए रीड कर रहा है और ये बी राइट करने की कोशिश कर रहा है सेम मेमोरी लोकेशन पे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, डेटा करप्ट हो जाएगा, है ना। मींस क्या हुआ, दोनों में सिंक्रोनाइजेशन नहीं था, दोनों ने एक साथ कर दिया, अपना अपना काम करने लगे, उसने दूसरे का देखा ही नहीं वो क्या कर रहा है। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चीज, और यही इम्पोर्टेंट है जो हम आगे पूरा इस यूनिट में पढ़ेंगे, सिंक्रोनाइजेशन। इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड सारे आगे जो हम पढ़ेंगे वो पॉइंट्स आएंगे ना, सेमाफोर्स वगैरह। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट याद रखना यहाँ पे आज क्लास में, शेयर्ड मेमोरी में इसको हमें फॉलो करना है, सिंक्रोनाइजेशन का। ठीक है। नाउ तो इस चीज़ को समझने के कि क्या इशू आ रहा था, ये मैंने डायरेक्टली आपको यहाँ बता दिया प्रॉब्लम क्या है, बट ये प्रॉब्लम को और भी बेटर वे में एक्सप्लेन करने के लिए एक प्रॉब्लम आती है नॉन एज प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। ओके, सिंपल प्रॉब्लम है, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, प्रोड्यूसर क्या करता है, जस्ट प्रोड्यूस द डेटा एंड कंज्यूमर कंज्यूम दिस डेटा। प्रोड्यूसर कुछ डेटा दे रहा है और कंज्यूमर उसको, लाइक अगर हम फिल्म प्रोड्यूसर की बात करें तो फिल्म प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है, वो खूब सारे पैसा दे रहा है, और कंज्यूमर मींस जो उसको यूज कर रहा है, उस पैसे को कंज्यूम करना है कहीं ना कहीं। व्हाट इज द प्रॉब्लम, सपोज
प्रोड्यूसर के पास खूब पैसा है, बहुत पैसा है ना, और वो पैसा दिया जा रहा है और कंज्यूमर उसको खर्च नहीं कर पा रहा है, कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके सामने क्लियर है। ठीक है, सेकंड थिंग जो मेन टास्क है एग्जैक्टली उसी पे आता हूँ मैं, प्रोड्यूसर कंज्यूमर के अंदर। सपोज प्रोड्यूसर एक आपका सर्वर है एंड जो कंज्यूमर इज ए क्लाइंट। ठीक है, अब सर्वर फास्ट है और कंज्यूमर जो आपका स्लो है, तो सर्वर तो फास्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, चाहे इसमें HTML रिक्वेस्ट की कोई फाइल रिक्वेस्ट की, सारी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एंड जो कंज्यूमर जो आपका क्लाइंट है वो स्लोअर देन सर्वर है, मींस ये सारे रिसोर्स को सेम टाइम पे यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम आपके सामने होगी, डेटा रिप्लेस हो जाएगा, करप्ट होता जा रहा है यहाँ पे, या सिमिलर कि क्लाइंट तो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है बट सर्वर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, मींस दोनों में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है ना, कि सर्विस आए जा रही है और आपके पास उसको यूज करने का टाइम नहीं है, या आप यूज नहीं कर पा रहे हो, स्लोअर कनेक्टिविटी या जो भी रीजन है आपका, तो ये प्रॉब्लम आती है, यही कहलाती है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। ठीक है, दिस इज द पैराडिग्म, एक एग्जांपल है आपके क्रॉपटिंग प्रोसेस का, जिसको हम अभी शेयर्ड मेमोरी में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो प्रोड्यूसर प्रोसेस द प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन कर रहा है एंड कंज्यूमर क्या कर रहा है, उसको कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज ये आई थिंक क्लियर हो गया था आपका कि प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है कि दोनों को सिंक्रोनाइज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी यूज द बफर। बफर आपने नाम सुना होगा, बफरिंग, है ना। अभी 4G टेक्नोलॉजी में यूट्यूब में बफरिंग बहुत कम होती है या इवन होती भी नहीं आजकल। पहले अगर यूट्यूब चलाते थे तो बफरिंग आता था सर्कल बीच में, हम कहते थे बफरिंग हो रहा है। रीजन क्या है कि आपका जो सिस्टम है कंप्यूटर तो फास्ट है, लेकिन जो सर्वर से जो डेटा आया था यूट्यूब का वो स्लो था, स्लो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए ना, तो बफर होता था। बफर मीन्स टेम्पररी स्टोरेज। तो इंटरनेट से कुछ डेटा आ रहा है वो पहले बफर में स्टोर होगा, बफर में आने के बाद हमारा कंप्यूटर यूज करेगा। ठीक है, तो सेम थिंग इन सर्वर और क्लाइंट के बीच हम क्या यूज करेंगे, बफर। कि सर्वर से अगर कुछ सर्विस आ रही है तो बफर में स्टोर हो जाए, उसको क्लाइंट फिर धीरे धीरे यूज करेगा। क्लाइंट फास्ट है, पहले सर्वर के इंफॉर्मेशन आ जाए फिर क्लाइंट इसको यूज करे। ठीक है, दिस इज नॉट बफरिंग। तो बेसिकली टू सॉल्व दिस प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम we use two types of buffer named unbounded and bounded. Simply उसकी साइज से रिलेटेड है। unbounded means not limit, अनलिमिटेड साइज का बफर है, जो भी बफर है साइज क्या है, अनलिमिटेड है। ठीक है, एंड बाउंडेड बफर मीन्स लिमिटेड साइज, साइज फिक्स है कि उसमें 10 MB 5 MB 1 KB इतना ही डेटा आ सकता है। ठीक है, तो दिस इज द बाउंडेड एंड अनबाउंडेड बफर। अनबाउंडेड मीन्स देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ साइज। ठीक है, और बाउंडेड मीन्स फिक्स्ड साइज, बफर साइज। जो बफर मीन्स जो मेमोरी यूज कर रहे हैं उस दोनों के, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, सर्वर और क्लाइंट के बीच में, वो मे बी अनबाउंडेड हो सकती है और बाउंडेड होगी। अगर बाउंडेड हुई तो साइज फिक्स होगी, अनबाउंडेड हुई तो उसकी साइज कोई फिक्स नहीं होगी, मीन्स डायनेमिक पे वर्क कर रहा है या स्टैटिक पे वर्क कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट सिंपल एक कोड बताऊंगा, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, सिंपल सा कोड है। ठीक है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर यूजिंग बाउंडेड बफर। तो बाउंडेड बफर मींस आपको एक मेमोरी स्पेस बनाना है, मींस आपको एक एरे बनाना है, वी जस्ट यूज अ सर्कुलर एरे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, कोड को बहुत ही सिंपल और इजी कोड है। यस, कोई पूछ रहा है? ओके, सिंपल सा कोड है। देखो हम कौन सा यूज कर रहे हैं, बाउंडेड। बाउंडेड मींस जिस आप एरे की आपकी साइज फिक्स हो, बफर की साइज फिक्स्ड होगी। ठीक है, तो शेयर्ड डेटा मींस वी डिफाइन अ बफर साइज विद 10। ओके, साइज हमने कितना लिया है ना, 10 साइज का कोई बफर साइज ले लिया, इसकी एरे हम डिक्लेयर करेंगे, एरे यहाँ पर डिक्लेयर किया, तो नेम बफर और साइज कितनी 10 एलिमेंट का एक एरे डिक्लेयर किया, नेम बफर, हमने बफर बना दिया। ठीक है, और 2 वेरिएबल्स इन एंड आउट, ये पॉइंटर्स हैं, इन एंड आउट। अगर हम बात करें सर्कुलर क्यू, आपने पढ़ा होगा सर्कुलर क्यू, तो क्यू में क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना। इन रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट जहां से एंट्री होगी, एंड आउट रिप्रेजेंट कर रहा है जहां से आप रिमूव करोगे। ठीक है, इन मींस एंट्रेंस पॉइंट, आउट मींस एग्जिट पॉइंट। ठीक है, तो जैसे डेटा कोई आया सबसे पहले कहाँ एंट्रेंस होगा, इन से, और आउट से वो एग्जिट होगा। ओके, छोटा सा डेटा इससे चलो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हेन दिस सर्कुलर क्यू इज एम्प्टी, कंडीशन इन एंड आउट दोनों पॉइंटर डिफाइन है, ये सर्कुलर क्यू एम्प्टी कब होगा, व्हेन इन इक्वल्स टू आउट। यस, एक बार सोचना क्या लिखा मैंने, इफ इन इक्वल्स टू आउट, इन की वैल्यू और आउट की वैल्यू अगर सेम है, मीन्स आपका एरे क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, जो सर्कुलर क्यू है वो क्या है,
एम्प्टी है, ठीक है। और फुल कब होगा, जब ये दोनों लोकेशन पूरा ही फिल होगा, ये वैल्यू कोई फिल है सारी, है ना। तो अगर ये सर्कुलर एरे आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज होता है। इन इक्वल्स टू इन प्लस वन, सॉरी इन प्लस वन मॉडुलो बफर साइज कितनी है यहाँ पर 10 इक्वल्स टू आउट, ठीक है। इसको इन प्लस वन मॉडुलो ऑपरेटर है जो आपका रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहा है। इन प्लस वन मॉडुलो 10 मीन्स बफर साइज इक्वल्स टू आउट। अगर ये वैल्यू हुई तो मीन्स आपका जो सर्कुलर क्यू है वो क्या है, फुल हुआ। ये दो कंडीशन डेटा स्ट्रक्चर आप अच्छे से पढ़िए, पर अभी सिंपल समझ लो। व्हाट इज इन, एंट्रेंस पॉइंट, आउट, एग्जिट पॉइंट, ठीक है। और बफर साइज कितनी रखी है हमने 10। तो सिंपल हमने एक बफर इंप्लीमेंट किया है, डिक्लेयर किया है बिफोर द मेन फंक्शन। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है प्रोड्यूसर के लिए, मीन्स विच प्रोड्यूस द प्रोसेस और डेटा, ठीक है। तो वाइल ट्रू मीन्स दिस इज द इनफाइनाइट लूप, कंटिन्यूस चलता रहेगा, मीन्स प्रोड्यूस करता रहेगा। और कब तक करेगा, जब तक कि आपका बफर फुल नहीं हो जाए। अगर बफर फुल हो गया तो प्रोड्यूसर को वेट करना पड़ेगा, अब वो फालतू में डेटा प्रोड्यूस नहीं करेगा, उसको पता लग जाएगा कि अभी जो कंज्यूमर है वो कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो जब तक कि बफर फुल है तब तक कि कोई भी डेटा प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगेन एक वाइल लूप लगाया, और ये कंडीशन अभी मैंने बताई, इन प्लस वन मॉडुलो बफर साइज में कितनी है 10। तो इन प्लस वन मॉडुलो 10 इक्वल्स टू आउट। इफ बोथ आर इक्वल, इसका मीनिंग क्या हो गया आपका, बफर फुल है तो डू नथिंग, कुछ नहीं करना उस समय, प्रोड्यूस आपको नहीं करना है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है, देन बफर में आप डेटा रीड कराओ तो इन की लोकेशन पे क्या करना है आपको, जो भी इसने प्रोड्यूस किया है उसकी वैल्यू कर दो और इंक्रीमेंट कर दो इन की वैल्यू को, इन प्लस वन, सिंपल थिंग। एंड नेक्स्ट, अब जो कंज्यूमर है वो क्या करेगा, सेम थिंग। अगर वो एम्प्टी हुआ मतलब कंज्यूमर कोई भी डेटा रीड नहीं कर पाएगा, तो अगेन वाइल कंडीशन ट्रू मींस इनफाइनाइट लूप, एंड वाइल इफ इन इक्वल्स टू आउट, ये कंडीशन अभी मैंने बताई थी, इन इक्वल्स टू आउट मींस दिस इज एम्प्टी कंडीशन। और अगर आपका एरे या सर्कुलर क्यू एम्प्टी है, मींस कोई भी रीड नहीं कर पाएगा, तो डू नथिंग, ठीक है। जब तक एम्प्टी है तो कंज्यूमर वेट करेगा कि प्रोड्यूसर कुछ प्रोड्यूस करे, until कंज्यूमर वेट। इफ फॉल्स, देन क्या करेगा, उसमें से डेटा को रीड करेगा। तो नेक्स्ट कंज्यूमर इक्वल्स टू बफर आउट वेरिएबल जहाँ से आउट करना आपको एग्जिट करना, ठीक है। और आउट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो आउट प्लस वन। तो जस्ट सिंपल प्रोग्राम है, एक बार इसको पीपीटी जब सेंड करूंगा एक बार रीड आउट जरूर कर लेना, ठीक है। टाइमिंग भी हो रहा अपना। तो आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई इशू, एनी इशू? ओके गुड गुड, ठीक है। तो ओके, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे रिमेनिंग जो सेकंड पार्ट है इसका, मैसेज पासिंग। ओके, थैंक यू सो मच।